سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین وقال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ معزز حاضرین، آج کا جو ہمارا احکام شریعت کا سلسلہ ہے وہ ہے زکوٰۃ کے مسائل۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ زکوٰۃ شریعت محمدیہ میں صاحب نصاب پر فرض ہے۔ قرآن پاک میں نماز کے ساتھ ساتھ 32 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ہر مسلمان صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اور صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ فقہاء کرام نے اس کی تعریف بیان کی ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت موجود ہے یا 7.5 تولے سونا موجود ہے تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے، اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور حاجت اصلیہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ اشیاء ضرورت جس کے بغیر انسان کا گزارا نہ ہو سکے، جس کے بغیر انسان زندگی نہ گزار سکے، مثلا رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، اور سواری کے لیے موٹر سائیکل ہے یا کار ہے۔ اسی طرح ہم موبائل یوز کرتے ہیں آج کل، یہ ہماری حاجت اصلیہ ہے۔ تو حاجت اصلیہ جن کی ہمیں ہر وقت ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی کا گزر اوقات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہ حاجت اصلیہ ہے۔ تو جس شخص کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ جو مال ہے وہ اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت موجود ہے یا 7.5 تولے سونا موجود ہے تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے اور اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جو زکوٰۃ جس مال پر فرض ہے وہ 3 قسم کے مال ہیں۔ نمبر 1 سونا چاندی، نقدی بھی اسی زمرے میں اور اسی حکم میں آتی ہے۔ نمبر 2 مال تجارت۔ نمبر 3 وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ جنگلوں میں چرتے ہیں۔ اس کی ہم ترتیب کے ساتھ تفصیل بیان کریں گے۔ سب سے پہلے سونا چاندی اور نقدی بھی چونکہ اسی کے زمرے میں آتی ہے، تو ایسا شخص جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ موجود ہے تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے، اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح چاندی ہے، اس کا جو نصاب ہے وہ ہے 52.5 تولے چاندی۔ اگر کسی شخص کے پاس کچھ سونا موجود ہے اور کچھ چاندی موجود ہے یا کچھ سونا اور کچھ نقدی موجود ہے، اسی طرح اگر کچھ چاندی اور کچھ نقدی موجود ہے یا کچھ مال تجارت ہے اور کچھ اس کے پاس نقدی موجود ہے، اس سب کو ملا کر اگر اس مال کی کل مالیت 52.5 تولے چاندی بنتی ہے تو اس مال پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مال تجارت کی چونکہ کچھ تفصیل ہے۔ مال تجارت ایسا مال جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا جائے، انسان کی نیت یہ ہو کہ میں یہ مال خرید رہا ہوں اور نفع ملنے پر اس کو بیچ دوں گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک شخص پلاٹ خریدتا ہے یا دکان خریدتا ہے اس نیت سے کہ میں پلاٹ کو منافع پہ بیچوں گا، یا کوئی جانور وغیرہ خریدتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں بیپاری وغیرہ موجود ہیں، وہ مال خرید و فروخت کی نیت سے خریدتے ہیں تو یہ بھی مال تجارت ہوگا۔ اسی طرح دکاندار ہیں، دکانداروں نے جو اپنی دکان میں سامان وغیرہ رکھا ہوا ہے یہ بھی مال تجارت ہے۔
और माल तिजारत की मिकदार 52.5 तोले चांदी या इससे ज्यादा हो तो उस पर ज़कात फर्ज होगी। और इसका हिसाब हम यूं करेंगे कि अगर हमारे पास कुछ नकदी मौजूद है उसको हम जमा करेंगे। जो माल तिजारत हमारे पास मौजूद है, प्लाट्स की सूरत में है या दुकानों की सूरत में है या दुकान के सौदा जात वगैरह, मसलन कपड़े का कारोबार वगैरह है, तो दुकान के अंदर जो कपड़ा रखा हुआ है या मुख्तलिफ किस्म की वैरायटियां वगैरह रखी हुई हैं, उन सब को हम जमा करेंगे और जमा करने के बाद इसका हम 40वां हिस्सा यानी कि 2.5% हम ज़कात निकालेंगे। और एक मसला और भी जहन में आता है कि एक शख्स का तिजारत का कारोबार है, दुकानदार है, उसने कपड़ा वगैरह रखा हुआ है या कोई और सौदा जात वगैरह रखे हुए हैं और उसने कुछ कर्जे भी देने हैं। तो इसकी तफसील ये है कि हम उसके कुल मालियत यानी नकदी हो या सोना चांदी उसके पास मौजूद है या जो भी दुकान में सामान वगैरह रखे हुए या प्लाट्स वगैरह हैं, इन सब को हम इनकी मालियत को जमा करेंगे। जितना उसने कर्जा देना है उस कर्जे की रकम को हम कटा देंगे, जो बाकी बचता है उस पर ज़कात फर्ज होगी। और इसी तरह अगर किसी शख्स ने कुछ कर्जे लेने हैं, मसलन उसकी दुकान में 10 लाख रुपए का सामान मौजूद है, 3 लाख रुपया उसने कर्जा है और कर्जा ऐसा है उसको मिलने का यकीन है, देर तो हो जाएगी मगर यह है कि मिलने का यकीन है, उसके गुम होने का या ज़ाय हो जाने का ये अंदेशा नहीं है। तो ऐसा कर्जा जिसके मिलने का कवी इम्कान है, उस कर्ज की रकम पर भी ज़कात लाजिम होगी। लेकिन यह कि उसकी अदायगी फौरन नहीं होगी, बल्कि उसकी अदायगी उस वक्त लाजिम होगी जब वो कर्ज की रकम निसाब का 5वां हिस्से जितना वसूल हो जाए। मसलन निसाब 52.5 तोले चांदी की मालियत जो निसाब बनता है वो कमोबेश 40 से 45 हजार रुपए है। तो 40,000 का अगर 5वां हिस्सा हम निकालते हैं तो वो 8,000 रुपए है। तो अगर जिस शख्स ने कर्जा लेना है तो जब उसको कर्जे के 8,000 रुपए मिल जाएंगे तो वो ना 8,000 रुपए का कर्जा अपना जो ज़कात है 2.5% वो निकालेगा। इसी तरह जो कर्जा उसको मिलता जाएगा इस हिसाब से वो उसकी ज़कात अदा करता जाएगा। और इस ज़िम्मन में एक और भी अहम मसला है, वो ये है कि एक आदमी प्लाट खरीदता है इस नीयत से कि इस प्लाट पर वो अपना मकान बनाएगा, उस मकान को आगे वो किराए पे चलाएगा, उसकी बेचने की नीयत नहीं है। ये प्लाट भी उसने जो खरीदा है बेचने की नीयत से नहीं खरीदा, बल्कि मकान उस पर बनाकर मकान को किराए पे चलाने की नीयत से उसने ये प्लाट खरीदा है। या ये नीयत की है कि इस प्लाट पे मैं दुकानें बनाऊंगा और उन दुकानों को किराए पे चलाऊंगा, या कुछ दुकानें उसने खरीदी हैं, उसकी नीयत ये थी कि मैं इन दुकानों को किराए पे चलाऊंगा, बेचूंगा नहीं। तो चूंकि ये खरीदी गई दुकानें या खरीदा गया प्लाट ये तिजारत की गर्ज से नहीं था, लिहाजा इसको हम माल तिजारत में भी शुमार नहीं करेंगे। अगरचे उसकी मालियत करोड़ों रुपए की ही क्यों ना हो, उस पर ज़कात लाज़िम नहीं होगी। माल तिजारत वो बनता है जिसको बेचने की नीयत से खरीदा गया है। और जिस तरह ज़कात मर्द पर फर्ज है, इसी तरह अगर औरत के पास निसाब जितनी रकम मौजूद है और उस पर साल भी गुजर गया है, मसलन एक औरत है उसके पास 7.5 तोले सोना मौजूद है, अगरचे वो 7.5 तोले सोना रखा हुआ नहीं है बल्कि उसके इस्तेमाल में है, तो भी उस पर ज़कात फर्ज होगी। हाँ, अगर औरत के पास 7.5 तोले सोना से
कम 7.5 तोला से कम सोना है और उसके पास ना तो दूसरी नकदी मौजूद है और ना ही चांदी मौजूद है, तो 7.5 तोला से कम सोना अगर मौजूद है तो उस पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। इसी तरह अगर औरत के पास सिर्फ और सिर्फ चांदी मौजूद है, ना नकदी मौजूद है ना सोना मौजूद है, सिर्फ चांदी मौजूद है, तो चांदी की चूंकि जो मिकदार है निसाब की वो 52.5 तोले, अगर 52.5 तोले से कम उसके पास चांदी मौजूद है तो उस पर भी ज़कात फर्ज नहीं होगी। हाँ, अगर उसके पास कुछ सोना मौजूद है, मसलन 2 तोले सोना है और 10 तोले चांदी है, या कुछ नकदी उसके घर में मौजूद है, तो सोने को जब हम चांदी के निसाब की तरफ ले जाते हैं, चांदी का निसाब पूरा हो जाता है, तो वो औरत चांदी के निसाब के एतबार से साहिब निसाब बनती है। चूंकि गुरबा का इसमें ही फायदा है, लिहाजा उसको चांदी के निसाब की तरफ मुंतकिल किया जाएगा, वो औरत साहिब निसाब बनेगी, उस पर ज़कात फर्ज होगी। और ज़कात देने के एतबार से कि हम ज़कात किस किस को दे सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी मसला है। हम बाज़ औक़ात ज़कात तो अपनी निकाल रहे होते हैं, लेकिन देने के वक्त हम एहतियात ज़्यादा नहीं करते, तो सामने वाले को देखते हैं, बस उसकी गरीब सी शक्ल हमें नज़र आई, हमने उसको ज़कात दे दी। अगर वो शख्स ज़कात लेने के काबिल नहीं है, यानी शरीफ फ़कीर नहीं है, अगरचे उसकी दिखने वाली जो हालत है वो बिल्कुल सादा सी है, तो अगर वो शरीफ फ़कीर नहीं है, हमने उसको ज़कात दे दी है, तो हमारी ये ज़कात अदा नहीं होगी। हमें चाहिए इसके बारे में हम गौर करें, जिस शख्स को दे रहे हैं वो शख्स शरीफ फ़कीर हो। एक तो ये है कि वो सैयद भी ना हो और हमारे उसूल में से ना हो। उसूल से मुराद जिन से हम पैदा हुए, मसलन हमारा बाप हो गया, माँ हो गई, दादा दादी, नाना नानी वगैरह ऊपर तक, ये हमारे उसूल हैं। हम अपने उसूल को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह हम अपने फुरू को भी ज़कात नहीं दे सकते। फुरू से मुराद हमारी औलाद है, बेटा बेटी हो गए, पोता पोती हो गए, नवासा नवासी हो गए, नीचे तक हम उसूल को भी ज़कात नहीं दे सकते, फुरू को भी ज़कात नहीं दे सकते। और इसी तरह शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। बीवी अगर साहिब निसाब है और उसका शौहर शरीफ फ़कीर है, तो बीवी अपने शौहर को भी ज़कात नहीं दे सकती। ज़कात देते हुए हमें ख्याल करना चाहिए कि सामने वाला शख्स शरीफ फ़कीर हो, और शरीफ फ़कीर की तारीफ ये है कि ऐसा शख्स जिसके पास अपनी हाजत असलिया के अलावा 52.5 तोले चांदी की मालियत न हो। इस मालियत के लिए नकदी होना शर्त नहीं है। मसलन अगर कोई औरत है, उसके घर में उसके पास 1 तोला सोना मौजूद है, उसके पास और कोई भी मालियत नहीं है, और 1 तोला सोना उसकी मालियत तकरीबन कम बेश 90,000 बनती है, और चांदी का जो निसाब 52.5 तोला है उसकी कीमत तकरीबन 45,000 बनती है। तो औरत के पास अगरचे 1 तोला सोना मौजूद है, बाकी उसके पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसी औरत शरीफ फ़कीर नहीं है, हम उसको ज़कात नहीं दे सकते। हमें इसके मुतालिक गौर करना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए, ताकि वो शख्स जिसको हम ज़कात दे रहे हैं वो शरीफ फ़कीर हो और हमारी ज़कात अदा हो जाए। और अपने रिश्तेदारों में से हम भाई को ज़कात दे सकते हैं अगर हमारा भाई शरीफ फ़कीर है और हमारा रहन सहन मामलात जुदा है। एक भाई जो है वो मालदार है, दूसरा भाई गरीब है, शरीफ फ़कीर है, और वालिद की जायदाद वगैरह भी कोई मुश्तरक वगैरह नहीं है। इसी तरह बहन है, अगर वो गरीब है या उसका शौहर गरीब है, तो हम अपनी बहन को भी ज़कात दे सकते हैं, अपने भाई को भी ज़कात दे सकते हैं अगर वो शरीफ फ़कीर हैं। इसी तरह भतीजा है, भतीजी, उसको ज़कात दे सकते हैं। भांजा है, भांजी, उसको ज़कात दे सकते हैं। मामू है, उसको हम ज़कात दे सकते हैं। खाला है, हम उसको भी ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह जो दीनी मदारिस के तुलबा हैं, अगरचे वो अमीरों के बेटे हैं लेकिन है तुलबा,
تو جو طلباء ہوتے ہیں وہ شرعی فقیر ہیں، ہم طلباء دینی طلباء کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسائل پر مختصر گفتگو کی ہے، زکوٰۃ کے اور بھی مسائل ہیں جن پہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں ان مسائل کے متعلق کوئی سوال اٹھتا ہے یا آپ زکوٰۃ کے متعلق، زکوٰۃ کے علاوہ کسی بھی مسئلے کے متعلق اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹس کر آپ مسائل کا